दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार, GP9 टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम पांडे। आज तो राज्यसभा में विपक्षियों ने हद ही कर दी। शांत स्वभाव और हमेशा हंसमुख रहने वाले राज्यसभा के सभापति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी आज सदन से उठकर चले गए। बहुत ही दुखी मन से हाथ जोड़ते हुए यह कहकर सदन से चले गए कि आज उनके साथ सांसदों ने दुर्व्यवहार किया है, जिसकी वजह से वो सदन में अपने आप को बैठने में समर्थ नहीं पाते हैं। विपक्षियों का सदन में जो आचरण है, इससे लगता है कि उन्हें माननीय सभापति जी के इस तरह से उठकर चले जाने का कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। पता नहीं ये विपक्ष के लोग कब सुधरेंगे। देश और आम लोगों से इन्हें कुछ लेना देना तो है नहीं। ये हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। राज्यसभा में या लोकसभा में विपक्ष का रवैया हमेशा अमर्यादित होता है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता वो भी कांग्रेस से ही संबंध रखते हैं, उनका भी रवैया कुछ ऐसा ही है। सरकार में रहते हुए इन लोगों ने तो देश का बंटाधार कर ही दिया है। अब विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ खास करने को मिल नहीं रहा है। इसीलिए सभापति महोदय के माध्यम से वर्तमान सरकार के ऊपर अनर्गल बातें करके शोर शराबा करना, सरकार को नीचा दिखाने का काम करना, ये इनका शगल बन गया है। अब चाय वाला मोदी सरकार तीसरी बार देश में बन जाए तो कहाँ इन लोगों को हजम होगा। तो जलन तो होगी ही, वो जलन निकाल रहे हैं। ये किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा में, किसी भी सदन में पूरे समय तक कार्य नहीं होता है, ज्यादातर समय हंगामे में ही बीतता है। मुझे इस बात का भी दुख है कि जो लोग सभापति और अध्यक्ष महोदय की बात नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं, उनके साथ सम्मानजनक बात नहीं करते हैं, वो आम लोगों से क्या बात करेंगे और क्या ही उनकी सुनेंगे। देश की जनता को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मिस्टर डेरेक ओब्रियन, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. The entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. Will give all assistance given to a medal winner. And here
I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. And let me tell you, honorable members, when the leader of the opposition raised his hand yesterday, I have to take note of it. Leader of the House and leader of the opposition are very, very significant. I sent a message to him. What is the issue you are seeking to raise? And the response which I get in writing, which will be laid on the table of the House today, and that was, I want to raise an issue of urgent public importance. Do I make anything out of it? Do I know the subject of it? Do I know the urgency of it? In the process, the leader of the opposition has an idea of the chair, that the chair is a rubber stamp or just a post office, get a communication and give the floor. When I give floor to someone here that is watched by more than 1.4 billion people, it is embedded in the history. I do not know how I will be able to respond to my conscience. Individually, all members are so talented. Sir, you walked out and you came. In the process, you hurt more than 1 billion people. In the process, you set aflame democratic traditions. By walking out, the insult to the chair, did you see yourself how Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? No. If it does it, is it the way? I'm so sorry. Will you take your seat? मैं बोल रहा हूँ, take your seat. बैठिए एक बार, बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूं अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है, मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है।
मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से जा रहा हूं। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और खास मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। इस वीडियो पर अपना कमेंट और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। To protect your city from noise pollution, stop honking. For your children, save water, save life.